All right. So in the last lecture, we talked about we wrote about the Bowman's capsule and we talked about the PCT. Now we are done with osmoregulation. We're going to start off with a new subtopic again under the same heading of homeostasis. What we are going to talk about are going to be hormones. ठीक है? अच्छा, अब अगेन जिस तरीके से हम लोग एंजाइम्स को जिस तरीके से हम लोग एंजाइम्स को whenever we have to explain them, we explain them as biological catalysts. How are you going to define hormones? Hormones को कैसे define करोगे? Hormones क्या होता है? Like again, जिस तरीके से हम लोग enzymes में करें ना, they're biological catalysts. Two words. Hormones क्या होंगे? How would you define hormones? Again, just two words only. Ishal, that's one word. They're chemicals, yes. उसके आगे उसके आगे they're used for signaling. Very good. ठीक है. Okay. So signals क्या करते हैं? What do signals provide? They're biological chemicals. That was a nice one, Kumal. They're chemical messengers. Very good. Very good, Fatma. Very good. Whenever we talk about Walaikum Assalam, whenever we talk about hormones को हम लोग कैसे define करते हैं कि they themselves are chemicals, right? And what are they? They are messengers. ठीक है, देखो बेटा. Whenever we talk about messengers do not carry out any particular function. ठीक है? They just pass on the message. Like, let me give an example. If my doorbell is going to ring, I'm going to go, this happens sometimes during the class as well. The doorbell rings and I have to pause the lecture and I have to go and see who's at the door. तो बात ये है जब तक doorbell, until the doorbell rang, why was I not going towards the door to see who may be outside? The doorbell isn't, the doorbell is not picking me up from the table or from wherever I am and taking me towards the door. It's just giving me a signal, Kecha Haris, since I have rung, there is somebody at the door and you need to see it. You don't have to go to the bathroom at that time. You don't have to make yourself a cup of tea when I ring. What you are supposed to do is you are supposed to go and see who there is, who's at the door. तो कहने का मकसद क्या है कि केमिक हॉर्मोन्स भी क्या कर रहे हैं. हॉर्मोन्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. ठीक है, वो सिर्फ एक सेल को मैसेज दे रहे हैं कि ओके अब मैं तुम्हारे पास आके लग गया हूँ. नाउ बिकॉज आई एम हियर यू आर सपोज टू डू दिस, राइट. आई वॉज ओनली गोइंग टू सी हु वॉज एट द डोर बिकॉज द बेल रैंग, राइट. तो इसी तरीके से हॉर्मोन्स भी ये करते हैं. जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि देखो एंजाइम्स है ना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, they do bind with the substrates, they do lower down the activation energy, they that they do allow the substrates to convert into products. Hormones ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. They're not coming in contact with anything except for one, the receptors. वो जिन जगहों पे सेल्स पे जाके लगते हैं उन जगहों को रिसेप्टर्स कहते हैं, राइट. और अगेन वो सिर्फ सेल को एक मैसेज दे रहे हैं कि सिंस आई एम हियर यू आर सपोज टू डू दिस. दैट्स ऑल, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हॉर्मोन्स हमारे पास क्या है दोबारा, दे केमिकल मैसेंजर्स. हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर, यूजुअली प्रोटीन इन नेचर, मतलब ज्यादातर ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं. अगेन हमेशा नहीं, लिपिड से भी बने हुए होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, राइट. सो दे यूजुअली प्रोटीन इन नेचर, जो क्या करते हैं, दैट आर रिलीज फ्रॉम कौन से वाले ग्लैंड्स, दे आर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड वे डू दे एक्ट ऑन, एंड एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट टिश्यूज, टारगेट सेल्स. अगर वो किसी ऑर्गन पे काम कर रहे होंगे तो वो टारगेट ऑर्गन हो जाएगा, किसी स्पेसिफिक टिश्यू पे काम कर रहे होंगे तो वो टारगेट टिश्यू हो जाएगा, अगर वो किसी सेल पे काम कर रहे होंगे तो वो टारगेट सेल हो जाएगा. ठीक है. सो अब बिफोर वी टॉक अ बिट मोर अबाउट द हॉर्मोन्स, ठीक है, उससे पहले मुझे क्या मालूम करना है, व्हाट आई वांट टू नो इज कि भाई ये जो हम लोग कह रहे हैं ना, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लेट्स फॉरगेट व्हाट एंडोक्राइन इज
लेट्स टॉक अबाउट ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होता है हमारे पास? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ग्लैंड? व्हाट्स अ ग्लैंड? हाँ, तैमूर ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स का, स्पेसिफिक टिश्यूज के, स्पेसिफिक सेल्स का फंक्शन चेंज करते हैं. A gland is not an organ. If some, not all glands release hormones. मेरे salivary glands तो hormones release नहीं कर रहे. Not all of them release liquid either. They don't store them either. They produce it. अच्छा देखो, सबसे पहली चीज, इफ यू हैव a differentiate between a cell, tissue and organ, glands को किस वाली कैटेगरी के अंदर प्लेस करोगे? You're going to say that glands are what? They are tissues. मतलब दे आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट सेल्स. ठीक है. दीज आर टिश्यूज जो क्या करते हैं? दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स. कहने का मकसद क्या हुआ कि कोई भी चीज़ अगर ये ग्लैंड्स बनाएंगे तो ये उसको खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको बाहर रिलीज कर देंगे, उसको सिक्रीट कर देंगे. रिलीज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड ए सिक्रीशन. ठीक है. मेरे टीयर ग्लैंड्स टीयर्स बना रहे हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं. सेलेवरी ग्लैंड्स, दे आर not they're not use they're producing the saliva, they're not using it up, they're secreting it into the mouth. हमारे नोज के अंदर, हमारे ट्रैकिया ब्रोंकाई के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं. राइट. द सेल्स आर कॉल्ड एज द गॉबलेट सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स मेक अप द म्यूकस ग्लैंड्स. दीज म्यूकस ग्लैंड्स इज सिक्रीट म्यूकस, लेकिन म्यूकस खुद तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको बाहर की तरफ सिक्रीट आउट कर रहे हैं. पेनक्रियस इज प्रोड्यूसिंग पेनक्रियाटिक जूस. राइट. खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है. मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा है, मेरा एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन बना रहा है, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहा है. ठीक है. सो व्हाट आर ग्लैंड्स अगेन? दीज आर दोज टिश्यूज दैट डू व्हाट? दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. अच्छा जी. नाउ, अब अगर हम लोग इन ग्लैंड्स को देखें तो इन ग्लैंड्स की दो टाइप्स होती हैं. So these glands, they have two types. Number one, we have glands that are called as exocrine glands. अगर हम लोग exocrine glands को describe करते हैं, हम लोग कहते हैं these are glands with a duct. कहने का मकसद क्या हुआ? They have small pipes attached onto them, and from those small pipes, what happens? Whatever the product that they're producing, it goes out. For example, at the very start of the chapter, हम लोगों ने दो glands पढ़े थे. We talked about the sweat glands, right? They had a sweat duct. We talked about the sebaceous glands. They had the sebaceous ducts, right? तो ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो भी कुछ बना रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू सिक्रीट करेंगे. ऑलराइट. अच्छा जी. आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, एड्रिनल पे आ रहे हैं. सो अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स लें, besides the sweat gland and the sebaceous gland, let's move a bit away. The salivary glands, right? What other glands do we have? We have the mucus glands. उसके अलावा हमारे पास एक और ग्लैंड हम लोग यहाँ लिखते हैं, पेनक्रियस इज अ ग्लैंड, राइट? वो क्या कर रहा है? हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, थ्रू द पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है. देन what we have is, or what we have are the endocrine glands, right? These are considered to be glands without a duct. These are ductless glands that secrete their products where directly into the bloodstream. ठीक है. For example, let me tell you how. I have this gland in the brain called as a pituitary gland. अब वो ब्लड वेसल से इस तरीके से सराउंडेड है, ब्लड वेसल इसको पूरा कवर कर रही है, लाइक दिस. तो again, the blood vessels are hollow, right? Like this. So whatever it's producing,
will directly go into the blood vessels. ठीक है? Now, अब what we are, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात ही बताओ, just one last thing before we move on. मैंने कहा है endocrine glands are ductless glands that secrete their products directly into the bloodstream, right? What are the products? What are the products of the endocrine glands? Can anyone tell me that? What are the products of the endocrine glands? Very good, Mafsam. Which is a what, Kumail? Which is a what? हाँ भाई, इंसुलिन क्या है? What is insulin? The answer is staring at you. It's right there. Very good, Wahiba. Very good, Banail. What are hormones? Where are the hormones released from? Released from the endocrine glands, right? तो endocrine glands के products क्या हो जाएंगे? Hormones. Easy. ठीक है? अच्छा, so what we are going to do now is हम लोग हमारे पास जितने भी endocrine glands हैं उसकी list बनाएंगे from the top towards the bottom of the body and we're going to talk about the hormones that they release. सारे तो hormones हमें याद नहीं रखने. We'll tell you कौन से याद रखने. So let's talk about the endocrine glands and the hormones that they produce. ठीक है? अच्छा, अब we're going to go from the top towards the bottom of the body. सबसे पहले in the brain we have an endocrine gland called as the pituitary gland. What does this pituitary gland do? This pituitary gland produces, it's sometimes considered as the master hormone producer. It produces a lot of hormones. For example, जो हम लोग पढ़ेंगे, we'll be talking about ADH. फिर when we'll be talking about reproduction mammals, हम लोग menstrual cycle पढ़ेंगे, तो उसके अंदर we'll be talking about FSH. We'll be talking about LH. Very good. उसके अलावा और कौन सा हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन. ठीक है? अच्छा जी, जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे ऑल थ्रू आउट द सिलेबस. अगर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से नीचे आए, हमारे पास कौन सा वाला हार्मोन आ जाएगा जो हमारे मेटाबॉलिक, कौन सा वाला ग्लैंड आ जाएगा? इट्स गोइंग टू it's going to be thyroid gland. Thyroid gland produces thyroxine. Thyroxine हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, राइट? ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन द बॉडी, कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, किससे कंट्रोल के अंदर है? थायराइड हार्मोन के कंट्रोल के अंदर है, थायरोक्सिन के कंट्रोल के अंदर है. हम उससे और नीचे आए तो फिर हमारे पास एक और एंडोक्राइन ग्लैंड आएगा जिसे हम लोग पेनक्रियास कहते हैं. Pancreas produces two important hormones that we'll be studying. It produces insulin and it produces glucagon. ठीक है? अच्छा जी, फिर अगर हम लोग पेनक्रियस के नीचे आए, किडनी के ऊपर, राइट? पेनक्रियस के नीचे अगर हम लोग नीचे आए तो किडनी के ऊपर वी हैव these glands called as the adrenal glands. बिल्कुल ना समोसों की तरह होते हैं यूं करके, वो जो जापानीज राइस केक्स नहीं आते, एग्जैक्टली वैसे ही होता है. दे आर कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड्स बिकॉज दे आर अबव द किडनीज. अगर यही ग्लैंड्स किडनी के नीचे होता है ना, इफ द वेरी सेम ग्लैंड्स वर एट द बॉटम ऑफ द किडनी, इनका नाम क्या हो जाता? सबरीनल. वेरी गुड मैम. ऑलराइट, तो खैर ये कौन सा वाला हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे? इट प्रोड्यूसेस एड्रेनालिन. ठीक है? नाउ देन वी हैव द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस steroids. Steroids क्या होते हैं? They're fat soluble hormone. They're made up, they're those hormones are made up of lipids, not proteins. They are the testes in the males and the ovaries in the females. The testes produce testosterone while the ovaries produce estrogen and progesterone. अच्छा, एक मजे की बात, adrenaline is only one of the hormones that the adrenal glands are making.
They also make other hormones as well. सा मैंने बताई ये फैट सॉल्युबल वाली बात जब हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, किधर गए लिपिड्स, ये रहा, हमने प्रॉपर्टीज में लिखा था कि इट प्रोड्यूसेस स्टीरॉइड्स, राइट? व्हाट आर स्टीरॉइड्स? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स। खैर, कम बैक हियर। uh, females also have testosterone and males also have estrogen. So turns out when they say कि हर मर्द में एक औरत छुपी है, that's right, because we also produce estrogen. लेकिन वो estrogen adrenal gland से आ रहा होता है. But the difference is males have a higher level of testosterone compared to females. Females have a higher level of estrogen compared to males. Testosterone is very important for muscle buildup. And since males produce excessive, cortisol, aldosterone, androgens, ये सब रिलीज होते हैं मेरा बेटा। तो खैर, क्या बात कर रहे थे हम लोग? Since males have more higher testosterone, uh, they have a higher muscle mass compared to females, right? अच्छा, dopamine is a neurotransmitter, it's not a hormone. वो neurons में होगा, right? अच्छा, now that we know all of this, today what we'll be talking about is ADH. आओ आज ADH के बारे में बात करते हैं. Let's get ADH done with today. So the first hormone that we'll be picking up, अच्छा उससे पहले एक और चीज़, I'm sorry, I forgot. थोड़ा सा मसला हो गया मालिक. मसला ये हुआ है, उसी द लेवल ऑफ ब्रेन रॉट. खैर, मसला ये हुआ है कि सर आपने पेनक्रियस की एग्जाम्पल एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी लिखी है, आपने पेनक्रियस की एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी लिखी है, राइट? तो सर डिसाइड कर लेना कि मतलब इज पेनक्रियस एन एंडोक्राइन ग्लैंड और इज पेनक्रियस एन एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो व्हाई डू यू गाइस थिंक दैट आई हैव रिटन pancreas as both an endocrine gland and as an exocrine gland? मैंने इसको दोनों में क्यों लिखा है? हम्म. So why is pancreas both an exocrine and an endocrine gland? हाँ, कुछ तो वजह होगी, पता लगाओ दया. अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, would you consider it has duct but also नहीं देखो, मुझे बताओ, would you consider no, I just have a very high level of brain rot from the memes and Instagram and everything. बिल्कुल देखो, बात सुनो, इसको इसको make it very simple, make it very simple. Pancreas, would you consider pancreas a tissue, a cell, or an organ? Pancreas क्या है? टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन है? It's an organ, right? And we know that organs are made up of many what? What joined up together? Many cells joined up together make up a tissue. Many tissues make up an organ, right? Make sense? अच्छा, glands हमारे पास क्या है? Tissues है ना? So can an organ not have more than one tissues? It can. होता क्या है? Pancreas is a leaf-shaped organ like this. उसके पास से एक डक्ट निकलता है, इसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आता है. इसके दो टिश्यूज होते हैं. We have a tissue that produces the pancreatic juice, and then at the corner we have a tissue that is surrounded by blood vessel. One of the tissues that it has, this one, it would act as an exocrine gland. The other tissue that it has will act as an endocrine gland. ठीक है, बात समझ में आई? Every organ has more than one tissue. ठीक है, the tissue that produces the endocrine tissue that it has is called as islets of Langerhans. वो आगे जाके पढ़ेंगे. All right. हाँ son, every organ has more than one type of tissue. So now that we know this, अब हम लोग बात करते हैं, let's talk about the first hormone. That hormone is called as antidiuretic hormone, ADH for short.
Now, before we talk about ADH, let's talk about one of my favorite substances, caffeine. Caffeine is a diuretic. So, whenever you have coffee or a concentrated shot of espresso, after give it 30 minutes, you would feel a pressure on your bladder and you would want to pee, right? So, caffeine being a diuretic is making you want to pee. It's increasing the volume of urine. So, if caffeine being a diuretic is increasing the volume of urine, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा भाई? What would the एंटी डायूरेटिक हार्मोन डू? ऑपोजिट. वेरी गुड. तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, it's going to decrease, it decreases the volume of urine. ठीक है? Exactly. कैसे? By causing reabsorption of water. ठीक है? इसका टारगेट टिश्यू क्या है? इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? It's the collecting duct of the nephron. ये कहाँ काम करता है? ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है. ठीक है, अब कैसे करेगा मैं बता दो, गिव मी अ मिनट. उससे पहले एक चीज और देखो. व्हेन वुड इट बी रिलीज्ड? हमने कहा व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इज लो. और ये कब होता है? नंबर वन, कौन सी वाली स्टेट के अंदर? फास्टिंग स्टेट्स के अंदर. ब्लड में एक्सक्रीटरी कंपाउंड सॉल्यूट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन हम पानी नहीं पी रहे. ठीक है. और दूसरी कंडीशन कब होती है? एक्सेसिव water loss through excessive sweating, through diarrhea, through vomiting, either of these. ठीक है. एक चीज देखिए. So this was again a nephron, right? So whenever आ रहे वो सिर्फ का कलेक्टिंग डेट को मिप्साम हम लोग सिर्फ कब वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जब हमारे पास एडीएच रिलीज होगा. ठीक है. लेट्स से विंटर्स के अंदर वी बेयरली लूज एनी वाटर, राइट? वी ड्रिंक मोर वाटर देन वी लूज. तो उसमें एडीएच प्रोडक्शन नहीं होगी हमारे पास क्योंकि ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम नहीं हो रहा. अच्छा, इसको देखो. हमारे पास ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट्स गोइंग डाउन एंड इट्स गोइंग अप. तो हमने कह दिया भाई इस लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब्स हैं. जो नीचे की तरफ जा रही है वो डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर की तरफ जा रही है वो असेंडिंग लिम्ब. ठीक है. ऑल द वे फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले till the collecting duct, the nephron becomes what? The nephron becomes impermeable to water. मतलब what just happened? Okay, कहने का मकसद क्या हुआ कि ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting duct, ये सब वाटर से impermeable हैं. मतलब वाटर इनकी वॉल्स को अप क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक है. नो वी कांट कॉन्शियसली कंट्रोल इट. Collecting duct will only become permeable to water when what is released? When ADH is released. ठीक है. जो भी वाटर अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ गया ना, अब वो किसी भी ब्लड वेसल में नहीं जा सकता. इट कैन नॉट गो इनटू द ब्लड वेसल. कब जाएगा? सिर्फ जब हमारे पास इसके ऊपर क्या आके लग जाएगा? एडीएच आके लग जाएगा. ठीक है. खैर खैर, एक बस इसको समझ लो 2 मिनट के लिए. आसान सी चीज़ है. मुझे एक बात ही बताओ. फॉर एग्जाम्पल, भाई हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट है. ठीक है.
This is your collecting duct now. What comes out of the collecting duct? What is going to get out? Urine is going to get out, right? Let's say सारी absorption वगैरह करके, for example, इस collecting duct के अंदर 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बचा है। क्योंकि ये collecting duct वाटर को पास करने का अलाउ नहीं करती, तो ये वाटर तो पास ही नहीं हो पा रहा। तो क्या ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर यूरिन के साथ निकल जाएगा, या यूरिन यूरिन के अंदर निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन 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 एक मिनट कुमेल, लेकिन अगर एडीएच आके लग जाएगा, इफ एडीएच वुड बाइंड ऑन टू द कलेक्टिंग डक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल दिस एडीएच, तो वो क्या करेगा? वो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा। ब्लड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है ना, हमने कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब कर लिया। कितना रीअब्जॉर्ब कर लिया? फॉर एग्जांपल 5 cm क्यूब, फॉर एग्जांपल 5 cm क्यूब रीअब्जॉर्ब कर लिया, सॉरी 4 cm क्यूब रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारे पास यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा? इनिशियली जब एडीएच नहीं था तो ये पूरा का पूरा 5 cm क्यूब बाहर यूरिन में आ रहा था ना, लेकिन अब एडीएच की वजह से हम लोगों ने 4 cm क्यूब रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो अब कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन आएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो एडीएच की प्रेजेंस के अंदर यूरिन की वॉल्यूम क्या हो गई? कम हो गई। वॉल्यूम क्यों कम हुई? क्योंकि हम लोगों ने यूरिया को तो यहीं रहने दिया, बस हमने इस यूरिन में से क्या रीअब्जॉर्ब कर लिया? वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया, राइट? तो अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन विद एडीएच और विदाउट एडीएच, तो सबसे पहले तुम लोग कमेंट करोगे इसकी वॉल्यूम के ऊपर। तुम लोग मुझे बताओगे सर जब एडीएच प्रेजेंट होगा तो यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है? अब यूरिन में से हम सिर्फ वाटर को निकाल रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग द सॉल्यूट्स आउट। वाटर निकाला तो यूरिन कैसा हो जाएगा? कंसंट्रेटेड, एंड द कलर ऑफ द यूरिन इज गोइंग टू बी deep yellow. The urine is always yellow, by the way. You know, when we're sleeping, sleeping is a fasting condition, right? We don't drink any water, लेकिन हमारे blood के अंदर solutes आ रहे होते हैं. That's why whenever we wake up thirsty. The first urine of the day will always be dark in color. No matter कितना उससे पहले पानी पी लो, कुछ भी कर लो, the first urine of the day is always going to be dark in color, right? लेकिन कंडीशंस लाइक कोल्ड, जहाँ हम लोग पानी लूज नहीं कर रहे, और इफ यू नो जस्ट कीपिंग आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, तो उसमें एडीएस रिलीज होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लड का वाटर पोटेंशियल कम ही नहीं हो रहा। तो फॉर दैट रीजन, इफ एडीएच वुड नॉट बी रिलीज्ड, वी आर गोइंग टू रिलीज अ हाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन। क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा है, तो हमारे यूरिन यूरिन की कंसनट्रेशन कैसे होगी? इट्स गोइंग टू बी डाइल्यूट, और उसका कलर क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी पेल येलो। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर टुडे, ठीक है? In the next class, Arfa, तुम क्या कह रही हो? Did you say something? Okay. So in the next class, we're going to talk about a negative feedback effect, और फिर हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में इंसुलिन और ग्लूकान के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।